Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे about a contraceptive device COPD. So what is contraception? Primarily any tablet like contraceptive pills, injections like DMPA kind of injectables do come, or a device like COPD which is used by females to postpone their fertility in order to, if they are not ready to plan a pregnancy now, so they can use these methods and avoid an unwanted pregnancy as of now. तो इनमें से हम COPD के बारे में आज डिस्कस करेंगे. So many a lot time patients come to the OPD and they are very confused about COPD. They say that can COPD have lots of side effects to us? It can increase our weight and can make our menses irregular. So that's why I do not want to use a COPD. So firstly I want to break this myth that COPD does not lead to any weight gain, because COPD is not having any kind of hormone instilled in it. COPD is having basic element copper for its contraceptive function. इसमें कोई हार्मोन नहीं है, तो वेट गेन होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है because of COPD. Another important thing is that irregular menses. Women will have to understand that कि जब COPD को उनके गर्भ में रखा जाता है, COPD को गर्भ में इंसर्ट करने के बाद it takes a little time to get adjusted inside the uterus. Even uterus takes little time to adjust COPD in the cavity. So उस वजह से कुछ women में, I would say if 100 women are instilling a COPD, maybe 5 to 10% को heavy menses for maybe 2 to 3 cycles, और intermenstrual menses के बीच में थोड़ी बहुत bleeding या spotting just 2 to 3 menstrual cycle तक maximum होती है, because it is a mutual adjustment between COPD and uterus is going on. उसके बाद ये menses as before naturally regular जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं. और इन these 2 to 3 months में symptoms को control करने के लिए कुछ supporting medications भी दी जा सकती हैं. So that is not giving irregular menses forever. It is just very temporary. Now why COPD is beneficial? Why we are talking about COPD today? COPD is a very important contraception because it is not user dependent. Patient के ऊपर dependent नहीं है ये method, because एक बार यदि COPD को गर्भ के अंदर insert कर दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट को जस्ट मंथली जेंटली वेजाइनल एग्जामिनेशन से, सेल्फ एग्जामिनेशन से, जस्ट फिंगर से वेजाइनली एग्जामिन करके COPD का थ्रेड फील करना होता है कि वो स्पेस में प्रॉपरली इंस्टिल्ड है, मिसप्लेस हो गई या फॉल आउट तो नहीं हो गई है. इसके अलावा किसी किस्म के विशेष और ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है. डेली बेसिस पे उन्हें कोई पिल याद करके लेनी है ऐसा भी नहीं होता है. अनदर COPD का वर्किंग ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है. COPD इज़ अवेलेबल फॉर अ वर्किंग ड्यूरेशन ऑफ 3 years, 5 years और मोर देन दैट से अप टू 10 years ऑल्सो. सो सच लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो एकदम सेफ है, जस्ट पेशेंट को एक थ्रेड चेक करने की ज़रूरत है, and possibly if every 6 monthly to a yearly they can visit gynecologist and get it properly checked. इतना more than adequate होता है. और COPD is cost effective also. In government hospitals by the government of India, this help is provided that it is free of cost for women to go and get instilled. सो सरकार तो इसे फ्री में उपलब्ध कराती है, बट प्राइवेट प्रैक्टिस में भी यदि आप जाके COPD इंसर्ट कराते हैं तो आई डोंट थिंक 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का कोई खर्च इसमें आता होगा, जिसमें वो आपको नियरली 3 to 5 years का कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रही होती है. सो इट इज़ वेरी यूजफुल फर्स्टली. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि COPD को कब इंसर्ट किया जाए. COPD को इंसर्ट करने का बेस्ट टाइम होता है विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज उस टाइम पे इट इज़ वेरी मच अश्योर्ड कि लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, बिकॉज शी जस्ट रिसीव्ड हर मेंसेस और ओवुलेशन होने को काफ़ी समय होता है. सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम अ COPD कैन बी इंसर्टेड फर्स्टली. सेकेंडली COPD इंसर्ट होने के बाद डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं जो थ्रेड आपको फील करना है मंथली बेसिस पे, दैट्स जस्ट नीड टू बी अंडरस्टूड. और यदि COPD को कभी हमें, जो मैंने बताया कि कभी वो डिस्प्लेस हो सकती है या एक्सपेल हो सकती है, उसके चांसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. और जो भी मिसप्लेसमेंट के अगर चांसेस होते भी हैं तो शुरुआती 2 to 3 months में होते हैं, द टाइम COPD इज़ टेकिंग टू गेट एडजस्टेड.
इट्स हार्डली 1 to 5%, उतना भी नहीं रहा है बिकॉज एज पर द न्यू रिसेंट स्टैंडर्ड कॉपिटीज़। कॉपिटी को किसी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है इंसर्ट करने के लिए। व्हेन यू कॉन्टैक्ट योर गायनिकोलॉजिस्ट, वो जनरली आपको विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंसेस के बुलाते हैं। इट्स अ सिंपल ओपीडी प्रोसीजर जिसमें इंटरनल एग्जामिनेशन करते हुए कॉपिटी को गर्भ के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। वो एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है और जब आपका कॉपिटी का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपको गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाके उससे या तो रिप्लेस करवा लेना होता है इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर मोर कॉन्ट्रासेप्शन, या अब बेबी आप प्लान कर रहे होते हैं तो कॉपिटी सिंपली रिमूव करा दी जाती है। कॉपिटी को रिमूव करने का प्रोसीजर भी कोई बहुत लंबा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट लाइक एन इंटरनल एग्जामिनेशन जिसमें कॉपिटी का थ्रेड जो होता है वेजाइनल एरिया में ही दिख रहा होता है। उसे सिंपली एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के जेंटली ड्रैग आउट कर दिया जाता है, विच इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल अगेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉपिटी। एंड वन मोर थिंग आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से दैट जैसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आई पिल एट्सेट्रा का उपयोग करते हैं, कॉपिटी इज़ ऑल्सो यूज नॉट इन आवर कंट्री येट, बट वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ कॉपिटी को एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी बहुत महत्व देते हैं क्योंकि कॉपिटी का एक्शन इज़ इमीडिएट। यदि आपने कॉपिटी इंसर्ट करी है तो उसमें के अंदर का कॉपर इमीडिएटली रिलीज़ होना शुरू कर देता है और द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज़ जस्ट इमीडिएट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब आप चाहते हैं कि अब मैं कॉपिटी कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू कंसीव, तो कॉपिटी को रिमूव कराते ही योर फर्टिलिटी इज़ ऑल्सो बैक। कॉपिटी को निकालने के बाद लंबा समय नहीं लगता है आपकी फर्टिलिटी को रिगेन होने के लिए। दैट इज़ अगेन इक्वली क्विक। इफ़ यू रिमूव देन विद इन अ मंथ यू आर फर्टाइल अगेन। So this is all about COPD. If you have any doubts about it, do post us in the comment section. I'll be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.